سینٹ میں پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل پاس نہ ہو سکا۔ حکومت کی اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن اراکین نے بل کی مخالفت کر دی۔ چیئرمین سینٹ نے پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل ڈراپ کر دیا۔ سینیٹر عبدالغفور حیدری نے کہا یہ بل حکومت کے لیے پھندا ثابت ہوگا۔ سینیٹر طاہر بزنجو بولے یہ بل جمہوریت پر کھلا حملہ ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد، سینیٹر عرفان صدیقی اور سینیٹر شریر رحمان نے بھی بل پر تحفظات کا اظہار کیا۔ حکومتی ارکان کی تنقید، اتحادیوں اور اپوزیشن کی مخالفت۔ سینٹ میں انسداد انتہا پسندی بل ڈراپ۔ سینٹ کا اجلاس اتوار کو چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ وزیر مملکت شہادت اوان نے ایوان بالا میں پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل 2023 پیش کیا۔ اپوزیشن ارکان چھٹی کے دن عجلت میں بل لانے پر اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ حکومتی رکن نون لیگ کے سینیٹر عرفان نے کہا کہ بل اہمیت کا حامل ہے، اسے پاس کرنے سے پہلے کمیٹی میں پیش کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ کل کو کوئی بھی اس بل کا شکار ہو سکتا ہے۔ ڈائریکٹ ہمارے پاس آنے کے بعد یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کہ اس کو قومی اسمبلی میں بھیجنے سے پہلے تھارولی دیکھیں، ہم اس کے ایمز، اس کے آبجیکٹو، اس کے مقاصد، اس کے اہداف سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ قانون اگر جوں کا توں جس طرح ہمارے سامنے آیا ہے منظور ہو گیا، بغیر کمیٹی میں گئے، بغیر اس ہاؤس میں ڈسکس ہوئے، تو پھر ہمارے لیے شاید آنے والے دنوں میں یہ ایک ایسا شکنجہ ہوگا جس میں سے پتہ نہیں کون کون کسا جائے گا، اور پھر وہ کہے گا جی کہ جب قانون بن رہے تھے تو آپ کہاں تھے۔ سینیٹر عبدالغفور حیدری نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا حکومت قانون سازی کر لیتی ہے، بعد میں پھندا اسی کے گلے میں آتا ہے۔ ہمارے اتحادی بھائیوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بدقسمتی سے جو حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے اس کو مستقبل کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ پھندا پھر ان کے گلے میں ہی آ کے پھنس جاتا ہے۔ دیکھیں، بہت سارے معاملات ہیں جو اس کے زد میں آ جائیں گے۔ کل آپ یہ قانون دیں گے تھانے دار کے ہاتھ میں، ایس پی صاحب کے ہاتھ میں، پولیس کے ہاتھ میں، اگر آپ نے کوئی زور سے بھی نعرہ لگایا تو اس نے کہا کہ تشدد پہ اکسا رہا تھا لوگوں کو۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں مندوخیل نے بل کی مخالفت کی۔ انہوں نے سوال اٹھایا چھٹی کے دن بلوں پر قانون سازی کیوں کی جا رہی ہے۔ سینیٹر طاہر بزنجو نے بل پیش کرنے کو ہدف تنقید بنایا اور بل کو جمہوریت پر کھلا حملہ قرار دیا۔ لیکن مسلم لیگ نون سے ہمیں سخت گلہ ہے۔ اس پیریڈ میں سر جتنے بھی ان لوگوں نے یہ الٹے سلٹے جو لیجسلیشن کیے ہیں، ساری ٹو سے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور یہ جہاں تک اس کا تعلق ہے اس بل کا جناب چیئرمین، یہ تو جمہوریت پر ایک کھلا حملہ ہے۔ یہ آپ کا رک رک کر سانس لینے والی جمہوریت کے دن جناب چیئرمین، مجھے تو کیا کہتے ہیں، مجھے تو اس کی موت نظر آ رہی ہے۔ کل سر اس ملک میں جو بھی آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرے، اس ملک میں مظلوم قوموں کی بات کرے، کمزور طبقات کی بات کرے، سب سے پہلے وہ اس کا نشانہ بنے گا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ اور سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ یہ بل آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے ارکان کی مخالفت پر رولنگ دی کہ حکومت اس بل کو ڈراپ کرے نہ کرے، میں ڈراپ کرتا ہوں۔ اب میری گزارش ہے کہ آپ سب چونکہ نہیں ہے تو میں اس بل کو میں ڈراپ کرتا ہوں، حکومت کرے نہ کرے۔ تھینک یو جی، آگے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر شہری رحمان کا کہنا تھا کہ بل اجرت میں پیش کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، ہم اس بل میں اپنی ترمیم لائیں گے۔ پاکستان کے مسلح افواج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات ہوئی۔ یو اے کے سفارت خانے کی جانب سے جاری ٹویٹ میں کہا گیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یو اے کے صدر سے ان کے بھائی مرحوم شیخ سعید بن زاید ال نہیان کی وفات پر تعزیت کی۔
पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के मुजवज़ा बिल के मुताबिक पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि पुरतशद्दुद तंजीम के असासे, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। हुकूमत पर पुरतशद्दुद शख्स की मॉनिटरिंग करेगी। पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारान और मेंबरान का असलहा लाइसेंस मनसूख किया जा सकेगा। पुरतशद्दुद तंजीम के असासे, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए जाएंगे। पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त भी नहीं होगी। कोई मालियाती इदारा पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, मेंबर या ओहदेदार को माली मुआवनत नहीं दे पाएगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस तंजीम को 50 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। तंजीम तहलील कर दी जाएगी। मुजवज़ा बिल कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली तंजीम को 20 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि चेयरमैन PTI को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। बोले 2018 में पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेला गया। गुज़िश्ता हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों को ठप कर दिया, मईशत को तबाह कर दिया। PTI के धरने के बायस चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ। 4 साल इक़्तिदार में इन्होंने कुछ नहीं किया। हवेली बहादुर शाह 2019 में शुरू होना था। गुज़िश्ता हुकूमत ने ये मनसूबा ठप कर दिया। किधर है इंसाफ करने वाली अदलिया? क्यों अज खुद नोटिस नहीं लिया? 71 साल का ये किस्सा है। पिद्दी कौमें कहां पर औजे सुरिया से आज वो बातें कर रही हैं और हम आज भी रेंग रहे हैं कि मैं अगर इसी तरह हमारा चाल चलन रहा, यही हमने अपने दुखी इंसानियत के साथ करना है, तो फिर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मैशत क्यों ज़मींबोश हो गई, कशकोल तोड़ना चाहिए और हमें कर्जे नहीं लेने चाहिए और हमें अपना हिंदुस्तान से आगे निकलना चाहिए और हमें दुनिया में अपना खोया मुकाम हासिल करना चाहिए। इस तरह तो नहीं होगा। यानी कोई तो इसका जवाब दे, कोई तो पूछे ये किधर है वो हमारे अदलिया, इंसाफ करने वाली अदलिया। उन्होंने क्यों नहीं इसका 100 नोटिस लिया? बाकी तो हर चीज का वो फौरन नोटिस लिया जाता था, लिया जाता और अभी भी हो रहा है। ऐसे मंसूबे जहां पर कौम की दौलत लुट गई, किसी को परवाह तक नहीं। दुनिया चाहती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, इस पर तमाशा बने। हमने अपनी पूरी कोशिश की और तमाम अदायगियां कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का सेनेट के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा IMF के साथ मुआहदे को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँचने वाले हैं। आने वाले 2-3 महीने की अदायगियों का बंदोबस्त कर रखा है। उम्मीद है सितंबर में वर्ल्ड बैंक से 450 अरब रुपए पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि मुख्तलिफ प्रोडिक्शन की गई, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान से बाहर भी, कि फ़लाँ पेमेंट नहीं होगी, फ़लाँ पेमेंट बहुत बड़ी है और ये बॉन्ड पे नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर पेमेंट वक्त पे की। और आज हम करीबन जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे उसके नज़दीक पहुँच चुके हैं। तमाम पेमेंट्स करने के बावजूद और विदाउट IMF प्रोग्राम और विदाउट कोई इनफ्लो ऑफ बाहर से IMF और इस तरह की जो इनफ्लोज होती है, क्योंकि जब IMF ऑफ ट्रैक होते हैं तो तमाम पेमेंट जो रुक जाती है। अल्लाह का शुक्र है आपने आज वो कर दिया है और विल ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके। लेकिन अब मुझे आज के बाद इस कानून अमेंड होने के बाद जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इंशाल्लाह वो भी पूरी करेंगे लोग, तो मैं समझता हूँ कि अक्टूबर में अल्लाह के फजल करम से हमारी PI की जो फ्लाइट्स बहाल हो जाएंगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान बंद कमरों में नहीं होगा। मुशावरत के बाद जो भी नाम फाइनल होगा कौम के सामने लाया जाएगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जितने मर्जी इजलास कर ले, ज़रूरी नहीं कि उनके दिए नाम पर इत्तफाक हो। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल, फैसले का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने का फैसला वज़ीर आज़म, काबीना और इत्तेहादियों ने करना है। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। आईनी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर की है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम जमातों, कोalition का पार्टनर्स के साथ मुशावरत के साथ और जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ मुशावरत के साथ इंशाल्लाह इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं ज़रूरी नहीं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका नाम पर ही इत्तफाक हो। नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन करवाने का फैसला हुआ तो इंतखाबात 6 महीने ताखीर से होंगे। हम निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम देंगे। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए तो फिर पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे
और अगर इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत कराने हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हल्का बंदियाँ दोबारा हों, फिर 5-6 महीने भी इलेक्शन लेट हो सकते हैं। हम अपनी मशावरत अपोजिशन के सारे दोस्त कर रहे हैं और हमने हर सूरत 3 नाम देने हैं। उन्होंने भी, वज़ीर आज़म साहब ने भी 3 नाम देने हैं। उन 6 नामों में से किसी एक नाम पे मेरा और वज़ीर आज़म साहब का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का इम्कान यकसर रद्द कर दिया। खुर्शीद शाह कहते हैं 5 नाम फाइनल किए जा चुके, कोई ब्यूरोक्रेट भी निगरान वज़ीर आज़म हो सकता। आगे बढ़े ना बात करें मीर जामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने शहर कायद में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। कल शहर के 10 मकामात पर एहतजाज और 4 अगस्त को MD वाटर बोर्ड दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। कुछ वहाँ करबला के मैदान में हुआ था, जिस तरह से वहाँ पानी बंद किया गया था, उस सब को लोग याद कर रहे थे। तो इसी दौरान में हमने देखा कि इस बहुत बड़े इलाके का पानी का कनेक्शन काट दिया गया। और करने वाले कौन हैं? करने वाले वो हैं जो 15 साल से बरसर इक़्तिदार हैं। वो कहते हैं कि नाजायज कनेक्शन बन गए हैं। ये कोई मरीख से आकर नाजायज कनेक्शन देकर गया है? क्या जुर्म किया है नॉर्थ कराची ने? क्या जुर्म किया है लांडी के लोगों ने? क्या जुर्म किया है नई कराची और सज्जानी वालों ने? उन्होंने आपके खिलाफ वोट डाले, इसलिए आप इंतकाम ले रहे हैं उनसे। ये इंतकामी सियासत नहीं चलेगी। ये पानी पे सियासत करते हो, बिजली पे सियासत करते हो, लोगों की बुनियादी जरूरियात पे डाका डालते हो और करप्शन का कारोबार करते हो। हम इनको एक्सपोज करेंगे। हमने फैसला किया है कि कल इंशाअल्लाह शहर में 10 मकामात पर एहतजाज किया जाएगा पानी की इस बंदिश के खिलाफ। मूसलाधार बारिशों के बायस सप्लाई मुतासिर लाहौर में सब्जियों के सरकारी दामों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। अदरक का सरकारी रेट 895 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में 1000 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर, लहसुन, शिमला मिर्च की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। जुल्कुरनैन राना रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू, फल, मौसमी सब्जियां सब महंगा, प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल, दुकानदार सरकारी रेट लिस्टों की बजाय मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। आलू का सरकारी रेट 75 रुपए, बाजारों में 120 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन 400, अदरक 1000 रुपए किलो तक बिक रहा है। इसी तरह अगर टमाटर की बात की जाए तो इसका सरकारी रेट 100 रुपए है, मगर बाजारों में 150 रुपए किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मेथी 250, शिमला मिर्च 200 और लीमू 250 रुपए किलो में बिक रहा है। शहरियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने घरेलू बजट मुतासिर कर दिया है। बुनियादी अशिया जरूरिया की कीमतें इनकी कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं। सारी सब्जियां महंगी हैं। कद्दू ले लें, टिंडा ले लें, भिंडी ले लें, सारी चीजें महंगी हैं। कद्दू भी महंगा है, करेला भी महंगा है, प्याज सस्ता है, टमाटर महंगा है, हरी मिर्ची भी महंगी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदामात करे